Good evening, everyone. তোমাদের স্বাগত জানাই আনএকাডেমির অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল লেটস ক্র্যাক ডাব্লিউবি এক্সাম। তো গাইস, লেটস ক্র্যাক ডাব্লিউবি এক্সাম এই চ্যানেলে তোমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল যাবতীয় প্রত্যেক পরীক্ষার নোটিফিকেশন প্লাস গাইডেন্স পেয়ে যাচ্ছ। তোমরা আমায় আনএকাডেমি অ্যাপে সার্চ করতে পারো, মানে ফলো করতে পারো। কি করে ফলো করবে? ফার্স্ট অফ অল তো নাম মনে রেখো, প্রীতি কুমারী। তারপর কি করবে? তারপর আনএকাডেমি অ্যাপ ইনস্টল করবে। সেখানে গোল সেট করে নেবে WBPSC। ওকে, গোল সেট করার পর ফ্রি কোর্সে যাবে। ফ্রি কোর্সে যাওয়ার পর প্রীতি কুমারী সার্চ করবে। সি অল করলে থার্ড নম্বরে যেই নামটা দেখতে পাচ্ছ সেটা অবশ্যই ফলো করে নিলে আমার ক্লাসের নোটিফিকেশন তোমরা টাইম টু টাইম পেয়ে যাবে। ওকে, চলো টাইম গুলো বলে দিই। তো প্রত্যেকদিন 6 PM তোমরা ইউটিউবে আমার ক্লাস পেয়ে যাচ্ছ, এন্ড প্রত্যেকদিন 8 PM তোমরা আমার ক্লাস অ্যাপে পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, তো অ্যাপে তোমরা প্রত্যেকদিন সায়েন্সের ক্লাস পেয়ে যাচ্ছ, অ্যান্ড ইউটিউবে তোমরা প্রত্যেকদিন পলিটির বা কারেন্ট অ্যাফেয়ার বা সায়েন্সের ক্লাস পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, তো সাথে সাথে ইউটিউবে অ্যান্ড অ্যাপে তোমাদের আমি এনটিপিসির যতগুলো পরীক্ষা হচ্ছে তার এক্সাম অ্যানালিসিসও বলে দিচ্ছি। মানে ডিএস এর কিভাবে কোশ্চেন আসে, কি ধরনের কোশ্চেন, সেগুলো আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি। ওকে, তো তোমরা অবশ্যই সেটাও দেখতে পারো। তো এক্সাম অ্যানালিসিসও পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, চলো, এটা আমাদের টিম যিনি তোমাদের লেটস ক্র্যাক ডাব্লিউবি এক্সাম এই ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের প্রত্যেকটা সাবজেক্ট গাইড করছেন। চলে আসি, তোমরা আনএকাডেমি কেন চুজ করবে, রাইট? তো আনএকাডেমি প্লাস কারা চুজ করবে, কেন চুজ করবে? তার ফলে দেখো, বলতে পারি যে এখানে তোমরা নিজের মন মানে নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী, রাইট, এডুকেটেড চয়েস করতে পারো। দ্যাট মিনস একটা সাবজেক্টের অনেকগুলো এডুকেটেড, যার পড়া তোমরা বুঝতে পারছো তার ক্লাসগুলো করতে পারছো। এছাড়া ব্যাচ তোমরা এখানে চুজ করতে পারবে, যেই ব্যাচে ইচ্ছা সেই ব্যাচটা করতে পারছো। Your dedication is following a well structured routine daily life. তো তোমাদের ডেলির জন্য তোমাদের একটা রুটিন সেট করে দেওয়া হচ্ছে, সেটা ফলো করলে অবশ্যই তোমরা নলেজ গেইন করতে পারছো এখানে, মানে ব্যাচ টু ব্যাচ সেটা। Your choice is being inspired by educate, right? তো এটা আমাদের ব্যাচ স্টার্ট হয়েছে। দ্যাট মিনস তোমাদের WBCS এর জন্য ব্যাচ স্টার্ট হয়েছে, অ্যান্ড একটা নয়, অনেকগুলোই ব্যাচ স্টার্ট হয়েছে। তো তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী তোমরা যে কোনো ব্যাচেই জয়েন করতে পারো। অ্যান্ড WBCS এক্সিকিউটিভ লেভেলের পরীক্ষা নয়, মানে ফর্ম ফিল আপের ডেট আমি আগেও তোমাদের বলে এসেছি যে 24 ডিসেম্বর থেকে 15 জানুয়ারি তোমাদের ফর্ম ফিল আপ। ওকে, তো তোমরা ফর্ম ফিল আপ অবশ্যই করো। যাদের ম্যাথস উইক আছে তাদেরকে বলছি যে তোমরা এই ফর্ম আরামে ভরতে পারো। ওকে, চলো, তো 28 থেকে একটা ব্যাচ তোমাদের স্টার্ট হয়েছে, সেম ব্যাচ 23rd থেকেও স্টার্ট হয়েছিল, আবার 28 থেকেও স্টার্ট হয়েছে। ওকে, আগমন বলে 250 ডেজ এর ফাউন্ডেশনাল কোর্স ফর ইউর WBCS এর জন্য স্টার্ট হয়েছে 2022 প্রিলিমস এর জন্য। ওকে, দেখো 2022 এর প্রিলিমস এর জন্যও তোমাদের আগমন বলে 250 ডেজ এর একটা ব্যাচ স্টার্ট হয়ে গেছে। যারা প্রিপেয়ার করতে চাও তারা অবশ্যই এই ব্যাচটা জয়েন করতে পারবে। এছাড়া ইচ্ছে পূরণ, ওকে, ইচ্ছে পূরণ বলেও তোমাদের 120 ডেজ এর একটা কোর্স স্টার্ট হয়েছে ফর ইউর PSC SI। ওকে, PSC SI ফুড এর জন্য। ওকে গাইস, তো ফুড ইন্সপেক্টরের জন্য তোমাদের 28 ডিসেম্বর থেকে একটা ব্যাচ স্টার্ট হয়েছে। আচ্ছা, NCERT এর ওপর তোমাদের NCERT দেখো 90 ডেজ এর কোর্স আর একটা স্টার্ট হয়েছে। তো NCERT 90 ডেজ এর কোর্স তোমাদের WBCS প্রিলিমস এর জন্য স্টার্ট করা হয়েছে। ওকে গাইস, তো এই সব ব্যাচ তোমরা 29 ডিসেম্বর থেকে এটা স্টার্ট হবে। তো এই সব ব্যাচই তোমরা সাবস্ক্রাইব করতে পারো। ওকে, সাবস্ক্রিপশন নিলে তোমরা এই ব্যাচগুলোতে ক্লাসও করতে পারবে। তো চলে আসি ক্লাসের সম্পর্কে, দেখো কি বলা হচ্ছে। তো যখনই কোনো ক্লাসের সম্পর্কে বলি তাহলে দেখো এখন স্ট্রাকচার কতটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে, রাইট? তো হোয়াট ইজ নিউ?
তোমরা আনএকাডেমিতে কি নতুন ফ্যাসিলিটি পাচ্ছ? তো ওয়ার্ল্ড ক্লাস টেকনোলজি এখানে ইউজ করা হচ্ছে। তাছাড়া ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লাস হয়। ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লাস বলতে তোমরাও জানো ভালো করে যে ক্লাসের মধ্যে যে কুইজগুলো হয় সেটা পোলের মাধ্যমে হচ্ছে, চ্যাট সেকশন এখানে থাকছে, তোমাদের নিজের ডাউট তোমাদের ওইখানেই তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারছো। লিডার বোর্ড তোমাদের দেখানো হয়, দ্যাট মিনস কুইজ হয়ে গেল, এবার প্রত্যেকটা কোশ্চেন যখন কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তখন তোমরা নিজের লিডার বোর্ড দেখতে পাচ্ছ যে কত নম্বরে তুমি র্যাঙ্ক করেছো, রাইট? এছাড়া স্ট্রাকচার্ড কোর্সও আছে তোমাদের জন্য, কুইজ, ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন, টেস্ট সিরিজ এইসব আছে। ডুয়েল এডুকেটর, দ্যাট মিনস একই সময় তোমাদের দুটো এডুকেটর থেকে তোমরা পড়তে পারছো। ওকে, তো দেখো সবগুলো এখানে দেখানো আছে। লিডার বোর্ড এটাই যেটা এখন বলছিলাম। ওকে, দেখো ডুয়েল টিচার তোমাদের পড়াচ্ছেন, রাইট? চল, ওকে, এবার চলে আসি সাবজেক্ট। সাবজেক্ট তোমরা প্রত্যেকটা সাবজেক্ট এখানে পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড, রিজনিং বা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ওকে, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, ইংলিশ, পলিটি, তাছাড়া বেঙ্গলি, কারেন্ট অ্যাফেয়ার, ইকোনমিক্স, অ্যান্থ্রোপোলজি, সোশিওলজি, ফিজিওলজি, হিস্ট্রি, হিন্দি, এইসব হিন্দি, তাছাড়া পলিটিক্যাল সায়েন্সও এখানে তুমি পেয়ে যাচ্ছ। ফিজিক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রি, জিওগ্রাফি এইসব তো বলা হয়ে গেছে। তো স্ট্রাকচার্ড কোর্স দেখো, স্ট্রাকচার্ড কোর্স তোমাদের জন্য পরীক্ষার জন্য যত ইম্পর্টেন্ট হবে সেটাই এখানে পড়ানো হচ্ছে স্ট্রাকচার্ড কোর্সে। ওকে, ব্যাচ কোর্সেস আছে এখানে। তাছাড়া প্র্যাকটিস সেশনও এখানে তোমাদের জন্য রাখা হচ্ছে। ডেসক্রিপটিভ পেপারের প্রিপারেশন তোমাদের করানো হচ্ছে, তার সম্পর্কে তোমরা এখানে টেস্ট পেয়ে যাচ্ছ। ডেসক্রিপটিভ পেপারের ওপর টেস্ট পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, তো চলো, পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট ব্যাচও তোমরা এখানে পাচ্ছ। তাছাড়া টেস্ট সিরিজের অ্যানালিসিস ক্লাসও তোমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছ। ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন পাচ্ছ। অ্যান্ড ডাব্লিউবি ওয়েস্ট বেঙ্গলের আন্ডারে, ওকে, ডাব্লিউবিপিএসসি এর আন্ডারে বা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট যে পরীক্ষাগুলো করায় সবটা এখানে কভার হচ্ছে। দেখো ডাব্লিউবিসিএস, ডাব্লিউবি টেট, ডাব্লিউবিপিএসসি ক্লার্কশিপ হতে পারে, পুলিশ হতে পারে, পুলিশ এসআই হতে পারে, পিএসসি মিসলেনিয়াস, এইসব এখানে তোমাদের কভার করা হচ্ছে। ওকে, এবার চলে আসি। তো যখনই তোমরা সাবস্ক্রিপশন নেবে, তোমরা 1, 3, 6 or 12, 24 মান্থের সাবস্ক্রিপশন নিতে পারো। আর ফি স্ট্রাকচার তোমাদের দেখো, ফি স্ট্রাকচার গুলো যদি তোমাদের মনে হচ্ছে না শুধু আমাদের রিভিশনের দরকার, তাহলে তোমরা অবশ্যই 6 মান্থে জয়েন করতে পারো। অ্যান্ড যদি তোমাদের মনে হচ্ছে যে না প্রিলিমস প্লাস মেন্স দুটোই আমাদের প্রিপেয়ার করতে হবে, তাহলে তোমরা 12 মান্থের কোর্সটা নিতে পারছো। কিন্তু যখনই কোনো কোর্স নেবে এখানে দেখো কি লেখা আছে, 10% ডিসকাউন্টের জন্য রেফারেল কোড ব্যবহার করুন। তো রেফারেল কোড তোমরা কি ব্যবহার করবে? অবশ্যই রেফারেল কোড প্রীতি ব্যবহার করলে তোমরা 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছ যে কোনো কোর্সের জন্য। ওকে, নট অনলি ফর ডাব্লিউবিপিএসসি, প্রত্যেকটা কোর্স। ওকে, ইউপিএসসি হতে পারে, রেলওয়ে হতে পারে, ব্যাংক হতে পারে, আইআইটি জেই হতে পারে, নিট হতে পারে, তো সবটার জন্যই তোমরা এখানে 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, ফার্স্ট অফ অল গোল সেট করে নেবে, প্লাসে যাবে, সি অল করবে। ওকে, সি অল করার পর তোমরা এখানে প্রত্যেক মাসে ফি স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছ। তারপর দেখো এখানে একটা রেফারেল কোড বলেছে দিতে, তো অবশ্যই রেফারেল কোড প্রীতি দিয়ে দেবে। অ্যান্ড রেফারেল কোড যখন প্রীতি দেবে তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো এখানে তোমাদের কতগুলো কয়েন তোমরা আর্ন করে থাকো সেটাও এখান থেকে রিডিম হতে পারে। ওকে, তো এইভাবে তোমরা সাবস্ক্রিপশনটা নিতে পারছো। চলো আজকে চ্যাপ্টারে চলে আসি। তো আজকে আমরা পড়বো ক্লাস 6 এর এনসিইআরটি তোমাদের কভার করাচ্ছিলাম আমি। তো আজকে পড়বো ম্যাগনেট। ওকে, ম্যাগনেট নিয়ে আজকে চর্চা হবে। তো শুধু বেসিক জিনিস যে ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালস কত ধরনের হয়। ওকে, আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটু ডিসকাস করে নেব, রাইট? অ্যান্ড তাছাড়া ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম বা পার্মানেন্ট ম্যাগনেট আমরা কাকে বলছি বা কারেন্ট কোন দিকে ফ্লো করে, বাস একটু জাস্ট একটু বেসিক কনসেপ্ট। ওকে, বেসিক কনসেপ্ট। যখন আমরা আর একটু উঁচু ক্লাসে আমাদের প্রমোশন হবে তখন আরো বেশি ম্যাগনেটের সম্পর্কে আমরা তখন দেখবো। ওকে, চলো। তো ফার্স্ট অফ অল যখন আমরা ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স বা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের কথা বলছি, দ্যাট মিনস কি হবে, ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল নামেই তোমরা বুঝতে পারছো যে
অমনি ম্যাটেরিয়াল বা অমনি সাবস্টেন্স যেটা मैग्नेट থেকে अट्रैक्ट হবে। जस्ट फॉर एग्जांपल लोहा, राइट। जब भी हम लोग आयरन की बात करते हैं तो आयरन को अगर आप चुंबक के सामने रख दो, है ना, मैग्नेट के सामने रख दो, तो क्या होगा, ये आयरन जो है इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है ना। तो मतलब आयरन क्या हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल हो गया आयरन, है ना। बस यही चीजें हैं यहाँ पे कि आपको याद रखना होगा कि मैग्नेटिक मटेरियल का क्या मतलब बन रहा है। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब बन रहा है कि वो सारे मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देखो एग्जांपल में आपको क्या बताया, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या होता है, ये सब आपका मैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, चलो, जब भी आप मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हो ना, तो हमारे एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डायमैग्नेटिक, ठीक है, एक होता है आपका पैरामैग्नेटिक, एंड थर्ड होता है आपका फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। ये बस मैंने आप लोगों को 3 टाइप बताया अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो डायमैग्नेटिक मतलब जिसमें ना के बराबर आपका मैग्नेटिज्म हो, पैरामैग्नेटिक मतलब वीक मैग्नेटिज्म होगा, एंड फेरो मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होगा, जैसे लोहा, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है क्यूरी टेम्परेचर बोल के। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या है भैया, क्यूरी का नाम तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, नहीं, फिजिक्स में भी क्यूरी है, और फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। ओके, तो भूलना नहीं है। तो क्यूरी मैडम को 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, एक फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। चलो, क्यूरी टेम्परेचर क्या है वो बता दूं। क्यूरी टेम्परेचर मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर है जिसके ऊपर क्या होगा, जिस मतलब जब वो टेम्परेचर आएगा ना, तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म रख रहे हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, पैरामैग्नेटिक में, मतलब उसका उनका मैग्नेटिज्म जो है वो लॉस हो रहा है। ओके, तो बिल्कुल याद रखना कि क्यूरी टेम्परेचर हम लोग कहाँ पढ़ते हैं या क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपको आयरन का ही दे दे, तो आयरन का टेम्परेचर जब हम 1000 केल्विन कर देंगे ना, तो ये आयरन जो है अब अपना मैग्नेटिज्म जो है खोने लगता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी ने ही इसके बारे में बताया था। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है भैया। तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, वैसा मटेरियल जो कि कभी भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ना हो। जैसे देखो, लकड़ी कभी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है क्या, सॉइल, मिट्टी ले लो, वो भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। तो इसीलिए इनको हम लोग नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ओके, चलिए, एक बात और बता दूं, ये जो मैग्नेट की खोज के बारे में बताया जाता है ना, तो एक छोटी सी कहानी बोली जाती है कि मैग्नम बोलकर एक गठीलिया था, ठीक है। तो वो क्या करता था, गाय भैंस वगैरह चराने जब जाता था ना, तो उसने क्या की थी, अपने लकड़ी के आगे, ठीक है, उसकी जो लकड़ी है, तो डंडे तो लेकर जाते हैं ना लोग, तो वो क्या करता है, अपने लकड़ी के सामने एक लोहा का टुकड़ा लगा देता है, ठीक है, आयरन का एक टुकड़ा लगा देता है, ताकि क्या, लकड़ी जो है वो घिसे नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, कि जब वो एक पहाड़ के सामने आता है, और जब वो उसका डंडा जब इस पहाड़ को टच करता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो इसको मेरे लाठी को तो नहीं, लेकिन उसके चुंबक को जरूर अट्रैक्ट कर ले रहा है। सेम चीज वो फिर दूसरे पहाड़ के पास जाके करता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो वहां से ये बात आती है, वहां से ये टर्म आ जाता है मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये टर्म वहीं से आ रहा है, मैग्नेटिज्म। क्यों, क्योंकि ये जो आपका पहाड़ था ना, ये आपका मैग्नेटाइट का पहाड़ था, ठीक है। और मैग्नेटाइट का पहाड़ का मतलब आपको क्या समझ में आता है, कि मैग्नेटाइट जो है वो आपका आयरन का ओर है ना। तो यहाँ से आपके मैग्नेटिज्म या मैग्नेट वर्ड की उत्पत्ति होती है, मतलब मैग्नेट वर्ड से हम लोग परिचित होते हैं। ओके गाइस, तो একদম মনে রাখবে যে সবচেয়ে বেশি आयरन তোমরা কোন ওর থেকে পাচ্ছ, ये मैग्नेटाइट जो है वो ओर है, ठीक है। तो সবচেয়ে বেশি आयरन লোহা তোমরা কোন আকরিক থেকে পাচ্ছ, मैग्नेटाइट থেকে পাচ্ছ। ओके, तो এই কথাটা অবশ্যই মনে রাখবে, ভুলবে না। ओके, तो ये मैग्नेटाइट का पहाड़ था, तो यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा था ये, लेकिन इसमें अट्रैक्शन नहीं हुआ। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं कि अर्थ की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ की जब हम बात करेंगे ना, तो ऐसा होता है कि जब भी हम लोग, एक चुंबक है, ठीक है, एक चुंबक है, मैंने उसको क्या किया, रस्सी से बांध दिया या किसी भी चीज से बांध दिया, ठीक है। बांधने के बाद जब उसको हम फ्रीली लटका दे रहे हैं, ठीक है, फ्रीली लटका दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका ये होता है कि आपको वो उत्तर और दक्षिण दिशा में वो मैग्नेट आपका जाता हुआ नजर आता है। जब हम किसी मैग्नेट को बांध कर लटका दें, तो जब वो झूल रहा है, उस कंडीशन में वो क्या होता है,
कुछ टाइम तक मूवमेंट करते करते फिर क्या होगा, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल की तरफ आपको दोनों उसका पोल्स नजर आता है, मतलब शिरा नजर आता है। ठीक है, ऐसा क्यों है भैया, ऐसा क्या वजह हो गया? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो अर्थ है ना, उसका भी एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, मतलब उसका भी एक मैग्नेटिक पोल होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको जियोग्राफिकल मेरिडियन दिख रहा है, दैट मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम दिख रहा है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम आपको पता है ना, ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन जिसको बोल रहे हैं, है ना। तो ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम जिसको बोल रहे हैं, तो ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या ग्रीनविच मीन टाइम है, ये आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक मेरिडियन भी यहाँ पे काम कर रहा है। अब आप भैया बोलोगे आप लोग कि अर्थ में क्यों मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं आएगा, आपको जब पता है कि हमारे यहाँ पर अर्थ को अगर हम डिवाइड करते हैं ना, मतलब उसके सरफेस को अगर हम देखते हैं ना, तो आपको 3 टाइप के यहाँ पर लेयर मिल रहे हैं, है ना। एक पहला लेयर क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोल रहे हैं पहले लेयर को, है ना। सेकंड लेयर को क्या बोलेंगे, मेंटल बोलेंगे। ओके गाइस, सेकंड लेयर मेंटल एंड थर्ड लेयर হয়ে গেল কোর। তো যখনই আমরা ক্রাস্ট মেন্টাল কোরের ব্যাপারে পড়ি, তো তোমরা ক্রাস্টে কি পাচ্ছ, সিয়াল, है ना, मतलब सिलिका एल्यूमिनियम। मेटल में क्या मिल रहा है आपको, सिलिका मैग्नीशियम, और कोर में क्या मिल रहा है आपको, निफे, दैट मीन्स निकेल एंड आयरन। तो अभी मैग्नेटिक मटेरियल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि निकेल जो है, आयरन जो है, कोबाल्ट जो है, ये सब क्या होता है, ये सब आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, दैट मीन्स ये मैग्नेटिज्म को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है, अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और जब भी हम किसी भी चुंबक को क्या करते हैं, लटकाते हैं, फ्रीली लटकाते हैं, तो फ्रीली सस्पेंड जब होता है तो वो अपना एक नॉर्थ और एक साउथ पोल जो है वो दिखाने लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि अर्थ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है। ओके, तो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है ना, वो आपका चुंबक का साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से एकदम सेम सेम तो अट्रैक्शन कभी होगा नहीं, आप लोगों को पता है ये बात, है ना। तो कभी भी देखोगे, अब ये रेयर केस है, ठीक है, तो कोई मेल है और मेल जो है वो आपका फीमेल के तरफ ही अट्रैक्ट होता है ना। मेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होता नहीं है, बट अभी ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इस केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, अपोजिट पोल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो नॉर्थ पोल है वो आपका साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एंड जो साउथ पोल है वो आपका नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो साउथ टू नॉर्थ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हमेशा इसमें नॉर्थ टू साउथ आप लोग आंसर नहीं करेंगे, आप लोग साउथ टू नॉर्थ आंसर करेंगे। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ आंसर करेंगे। अब बता दिया क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो अपोजिट है, अर्थ के अपोजिट। ठीक है, तो बस इतना याद रखो कि साउथ टू नॉर्थ होगा मैग्नेटिज्म जब भी हम लोग को अर्थ का पूछा जाएगा। ठीक है, चलो देखो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जब हम लोग एक फ्री हैंगिंग मैग्नेट को क्या करते हैं, ब्रेक कर दो या जो भी कर, जैसे भी करके आप उसको लटका दो ना, तो आपको जो है साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन वो दिखाता है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या हुआ था, जिसके ऊपर पहले के जो नाविक होते थे वो कंपास लेकर जाते थे। ठीक है, अब अर्थ तो सबसे बड़ी है ना, उसका कोर सबसे बड़ा, तो जितना बड़ा मैग्नेट उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इसी वजह से नाविक जो है वो कंपास लेकर जाते हैं। आप वो मूवी आप लोगों ने हॉलीवुड वाली देखी होगी, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, राइट। तो वो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो नाविक होते थे पहले, जो सेलर्स होते थे, वो आपका कंपास लेकर जाते थे, किस वजह से, डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, तो डायरेक्शन की वजह से, तो अर्थ का कोर इतना बड़ा है ना कि आप कहीं पर भी रहो, आपका मैग्नेट जो है आपको नॉर्थ साउथ पोल जरूर दिखाएगा, अर्थ के मैग्नेट की तरीके से। ठीक है, तो चले आते हैं, वन हु डायरेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। ये तो बहुत इजी हो गया, मैंने अभी भी बताया आप लोगों को, एक नॉर्थ पोल हो गया और दूसरा साउथ पोल हो गया। ठीक है, चलो अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों होता है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यही चीजें आप लोगों को यहाँ पे भी बताई हुई है कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है ये आपका क्या हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हम लोग ये मैग्नेटिक मेरिडियन जो है ये हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
ट्रू नॉर्थ पोल द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक है, तो ये जो आपका जो सच का नॉर्थ पोल है ना, जो सच का नॉर्थ पोल है, इसके टुवर्ड्स जो है हमारा जो अर्थ है वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पर जो आपको एक एक्सिस बताया जा रहा है, एक्सिस अराउंड विच अर्थ रोटेट वंस अ डे, तो एक दिन में आपका जो अर्थ मूव कर रही है वो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करती है। अब आते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल, तो ये आपका ट्रू साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, मतलब मेरे को थोड़ा सा इधर से ड्रॉ करना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मिटा दिया। तो बिल्कुल आपको देखो ये वाला, ये जो डायरेक्शन है ना, आप यहां से एक लाइन खींचो। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है, जो आपका नॉर्थ और साउथ जो हम लोग जानते हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अर्थ हमारी जो है वो अपने एक्सिस पे वैसे भी थोड़ी सी झुकी हुई है। तो दूसरी बात ये है ना कि ये आपका हो गया क्या, ट्रू साउथ पोल, बट मैग्नेटिक साउथ पोल जो है वो थोड़ा शिफ्ट कर गया। अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक, तो ये बातें वही लिखी हुई है जो अभी हम लोगों ने कंपास के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, कि साउथ ऑफ द मैग्नेट इनसाइड द अर्थ इज नॉर्थ। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इनसाइड द अर्थ इज नॉर्थ, एंड दैट्स व्हाई द नॉर्थ एंड ऑफ कंपास नीडल इज अट्रैक्टेड टू विथ मैग्नेट अपोजिट अट्रैक्ट। तो ये तो सारी चीजें आप लोगों को बताया मैंने कि नॉर्थ साउथ की तरफ और साउथ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका रिप्रेजेंटिंग द शेप एंड डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो आपको यही बता रहा है अर्थ का शेप जो है उसके अकॉर्डिंग और आपका अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग वहां पे क्रिएट होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर यही सारी बातें लिखी हुई है जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था। ये आपका हो गया प्राइम मेरिडियन। ओके, प्राइम मेरिडियन, और ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ के क्या होते हैं, कोर, मेंटल एंड क्रेस्ट होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग देखो, ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका पोर्शन है, सॉरी, ये जो आपका पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना, तो ये क्या है, इनर कोर है जो कि सॉलिड होता है, और आउटर कोर जो है वो आपका क्या है, लिक्विड स्टेट में है। राइट, तो ये चीजें तो आप लोगों ने जियोग्राफी में भी पढ़ी है। और यहाँ पर क्या मिलता है ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर आपका निकेल और क्रोमियम मिल रहा है। ठीक है, निकेल और आयरन मिल रहा है, और इस वजह से यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बताया हुआ है ना, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, इधर आपका मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया। जियोग्राफिकल ये सेम पिक्चर ही है जो आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात हो गई जो सेकंड वाले पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि अर्थ जो है उसका एक जियोग्राफिकल मेरिडियन, एक आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, इसके अलावा देखो इक्वेटर है आपका 0 डिग्री पर। राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपका 23.5 नॉर्थ पे चला जा रहा है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन जो है वो आपका 23.5 साउथ पे चला जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें हम लोगों ने अर्थ के बारे में देखा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है और वो, सॉरी, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन होते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग छोटा सा एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो कि हम आयरन की बात ही कर लेते हैं, तो अगर आयरन से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करवा रहे, तो आयरन क्या करेगा, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेगा, है ना। तो इसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। एकदम सिंपल से टर्म में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाई एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, the magnetic field disappear when the current is turned off. Electromagnet usually consists of wire around the coil. ठीक है, देखो ये वाली चीजों के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर मान लो अब हम कॉपर का ही ले ले, ठीक है, कॉपर का ही मान लो मैंने यहाँ पे कॉइलिंग कर दी। अब मैंने क्या किया, बैटरी से करंट जब पास किया, तो जब मैं करंट पास कर रही हूँ तो उसके आसपास का जो फील्ड होगा वो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। ठीक है, आसपास के जो फील्ड होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है, मतलब सर्किट को हमने हटा दिया, तो क्या होगा, ये अपने पहले वाले स्टेट में आ जाएगा, मतलब इसका मैग्नेटिज्म
नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा, कर पाएगा ये। तो जब हम किसी भी मेटल को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो एकदम छोटा सा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आयरन वगैरह, कॉपर, ये सब हो जाता है। पर परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट जो है, जो हमेशा आपको एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल दिखाए, वही है आपका परमानेंट मैग्नेट। ओके, तो देखो কি লেখা আছে, a permanent magnet is an object made from an material that is magnetized and create its own persistent magnetic field. The an everyday example is the refrigerator magnet, also the used to hold notes on a refrigerator door। ठीक है, तो वहां पर आपको बता रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर के पास जो डोर होता है ना, वहां पर हम लोग जो मैग्नेट को फील करते हैं, वो होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, जो हमेशा आपको एक नॉर्थ साउथ पोल आपको दिखाता है, और उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो हमेशा परसिस्ट करता है। ठीक है, दो बातें यहाँ से हो गई। अब हम लोग चले आते हैं, सिंपल सी बात है कि जब हम लोगों को डायरेक्शन बताना हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना हो, तो आपको पता है ना, एक थंब रूल काम करता है। ठीक है, थंब रूल काम करने का क्या मतलब होता है? जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे नॉर्थ साउथ, एक मिनट, चलो, यहाँ पे जब हम लोग नॉर्थ साउथ की बात करते हैं ना, तो मान लो इस तरफ से आपका क्या हो रहा है, इस तरफ से आपका मतलब सीधे के तौर पे, ठीक है, सीधा जो है ये आपका कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। अच्छा, इस केस में हम लोग देख लेते हैं, ये वाला जो केस है आपका, इसको देखो। ठीक है, इसको जब हम लोग देखते हैं तो मैग्नेटिक करंट जो है वो किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो जब करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो थंब रूल क्या बोल रहा है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपका इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, मेरे ख्याल से, है ना। और जब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जब हमारा, सॉरी, करंट जब हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब रूल क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका किधर जा रहा है, इस तरफ। ठीक है, तो एकदम इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। कभी भी ऐसा हो कि डाउनवर्ड अपवर्ड जब भी पूछे आप लोगों से, तो एकदम सिंपल सा लॉजिक हम रूल लगा देंगे। ठीक है, जब भी हमसे पूछेगा कि करंट का डायरेक्शन किधर है, वहां पर हम लोग यही बात बोलेंगे। अगर करंट का डायरेक्शन इधर है, तो मतलब इस तरफ से घूम रहा है मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ से क्रिएट हो रहा है। अगर इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से क्रिएट होगा। समझ में आ गया बात? चलिए, तो बिल्कुल ये वाला जो है ना वो आपका क्लॉकवाइज है। ठीक है, भूलना नहीं है, अभी जो बता रही थी मैं, क्लॉकवाइज है, और ये एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ठीक है, तो याद रखना है, जब भी हम डाउनवर्ड जा रहे हैं ना, तो मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होगा, डाउनवर्ड हम जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कहाँ से, इधर से घूम रहा है ना, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, और अगर हम लोग अपवर्ड जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर घूम रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग एमसीक्यू पे चले आते हैं। ठीक है, तो हमारा देखो पहला एमसीक्यू हम लोगों से क्या पूछ रहा है, मतलब पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। टेबल में क्या है, कुछ नहीं है, PQR जो है आपका एक मैग्नेट है, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर है आपका, आर्टिकल्स फ्रॉम विच ऑफ दिस ग्रुप कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट बट कैन नॉट अट्रैक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, तो बाई अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैन नॉट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा जो कि आपका मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, बट मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो मतलब अदर ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो मैग्नेट की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहा है वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ही तो हो सकता है। एकदम इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, क्यू। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। वापस से वही बात है कि अ फ्यू एग्जांपल ऑफ सब्सटेंसेस आर गिवन बिलो, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, टू विच ग्रुप डू दे बिलोंग। तो ये जो आयरन, कोबाल्ट, निकल है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेंगे? तो अभी आप लोगों को पता है कि ये सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं,
मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो जब ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, राइट। अगर इसी के जगह पर क्या लिखा हुआ रहता, इसी के जगह पर वुड लिखा हुआ रहता, सॉइल लिखा हुआ रहता, इस तरीके की चीजें अगर लिखी हुई रहती तो क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन मैग्नेटिक बोल देते। अच्छा, फिर से एक टेबल दिया हुआ है, मतलब सेम टेबल ही दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। आफ्टर रिपीटिंग रबिंग with a magnet in the same direction, a piece of substance failed to get magnetized. To which group does it belong? तो यहाँ क्या बोल रहा है, मैग्नेट्स के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में हम लोग रब कर रहे हैं। तो पीस ऑफ सब्सटेंस मतलब वो जो जिस सब्सटेंस के साथ हम लोग मैग्नेट को रब कर रहे हैं ना, वो मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। फेल टू गेट मैग्नेटाइज मतलब मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, तो मतलब वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो बिल्कुल वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होगा, तभी तो उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं आ रहा है। तो आर इज करेक्ट आंसर ना। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, वापस से सेम चीजें हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आर्टिकल्स फ्रॉम विच ऑफ दिस ग्रुप्स कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो फिर से वही क्वेश्चन है कि मैग्नेट से आपका कौन सा ग्रुप यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे मैग्नेट से मैग्नेट तो अट्रैक्ट होगा ही साथ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी अट्रैक्ट होते हैं। तो गाइस आंसर কি হয়ে যাবে পি এন্ড কিউ, কারণটা কি, কারণ ম্যাগনেট থেকে অ্যাট্রাক্ট যখন বলছে তো মানে ম্যাগনেটকে তো অ্যাট্রাক্ট করবেই, ওই ম্যাগনেট ছাড়া আর ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্সেস কেউ अट्रैक्ट করছে। ओके, चलो नेक्स्ट चले आशी फिर से आपका सेम टेबल, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज रिपेल बाय अ मैग्नेट, टू विच ग्रुप डज इट बिलोंग। अगर बोल रहा है रिपेल कर रहा है, ठीक है, मतलब मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में क्या, तो उस कंडीशन में रिपेल बाय अ मैग्नेट। अच्छा देखो, यहाँ पर बोला है रिपेल, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो ना अट्रैक्ट होते हैं ना रिपेल होते हैं, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे आंसर नहीं होगा। अब देखो रिपेल कब होता है, रिपेल तब होगा जब मान लो हम दो मैग्नेट को पास पास रख रहे हैं, इसका साउथ पोल इसका भी साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल अलग हो गया, ठीक है। तो साउथ पोल जब भी होगा तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद रखना है कि यहाँ मैग्नेट होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बोल रहा है रिपेल, मैग्नेट जो है वो रिपेल हो रहे हैं, किस टाइप के, तो मैग्नेट जो है मैग्नेट को ही रिपेल करता है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कोई हरकत ही नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, टू विच ग्रुप डज अ रिंग मेड अप ऑफ कॉपर बिलोंग। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉपर का रिंग जो है वो बना दे रहे हैं, तो वो पूछ रहा है कि किस ग्रुप से ये बिलोंग कर रहा है। तो बिल्कुल ये आपका आर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ बिलोंग करेगा, ठीक है। ग्रुप डज अ रिंग मेड ऑफ कॉपर, तो अगर हम रिंग बना रहे हैं मतलब उसको हम हीट कर रहे हैं, है ना। और जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा प्रॉब्लम, हमारे साथ ये प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पर आपका ये नॉन मैग्नेटिक में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक में चेंज हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज अ नेचुरल मैग्नेट नोन एज। तो नेचुरल मैग्नेट जो है वो हम किसको बोल रहे हैं, व्हाट इज अ नेचुरल मैग्नेट नोन एज। तो नेचुरल मैग्नेट के हिसाब से कौन है, तो बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है, आपका लोड स्टोन जो है वो आपका नेचुरल मैग्नेट बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले एक बार करवाया है ऐप वाले क्लास में, चलिए कोई नहीं। व्हाट इज द नेचुरल मैग्नेट नोन एज, तो लोड स्टोन इसको बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको बताना है कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है यहाँ पे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मटेरियल के हिसाब से हम लोग किसको जानते हैं, हमारा स्टील जिसमें आपको आयरन मिलेगा, है ना, और निकेल। तो एल्युमिनियम जो है वो अट्रैक्ट होता नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जा रहा है। पहला देखो क्या बोल रहा है, नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट विल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, कभी नहीं हो सकता, एकदम गलत स्टेटमेंट। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैन बी मेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ऑल्सो, नहीं। लोड स्टोन इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, नहीं, लोड स्टोन तो अभी पढ़ा ना, ये नेचुरल मैग्नेट है। ओके अब आते हैं, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट।
तो ये सही बात है, ठीक है। तो आइसोलेटेड जो है मतलब अलग अलग पोल्स जो है, मैग्नेटिक पोल्स तो अलग अलग नहीं होते ना, एक ही में आपका एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल आ जाता है एक ही बार में मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वेयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ मैग्नेट द मैक्सिमम। तो आपको बताना है कि मैग्नेट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, मैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम कहाँ होता है। तो बिल्कुल इसके पोल पे, राइट, पोल पे। हम लोग जब भी एक बार देखेंगे ना, मतलब अभी अर्थ वाला भी आप लोग देख रहे थे ना, तो बिल्कुल यहाँ पे नॉर्थ साउथ अगर हम प्लेस करें तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म कहाँ होगा, इसके पोल्स पे ही तो होगा, दोनों पोल्स पे होगा, राइट। यहाँ पर आपको उतना मैग्नेटिज्म नहीं मिलेगा जितना आपको नॉर्थ और साउथ पोल पे मिल रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, इन विच डायरेक्शन डज अ मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। तो आपको देखो क्या पूछ रहा है आप लोगों को कि कौन सा डायरेक्शन डज अ मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट वेयर व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। तो जब हम लोग सस्पेंड मतलब एक फ्रीली लटका रहे हैं ना मैग्नेट को, तो वो कौन सा आपको डायरेक्शन दिखाएगा। तो बहुत ही इजी है, नॉर्थ साउथ ही तो दिखाएगा, दूसरा और कुछ दिखाने का है क्या उन लोग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वेयर डज अ कंपास वर्क। तो एक कंपास जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा, ओनली इन ओशन और सी, only on land where earth's magnetic field is strong, only a high mountain, at all the places within the earth's magnet field। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल जहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर ये किसी भी जगह पर, हर एक जगह पर अपना कंपास जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो बिल्कुल याद रखना है कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है स्पेशल प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे कि वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, यही तो बोलेंगे ना। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो कहाँ, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। रिपल्शन का यहाँ कोई मैटर नहीं है, तो प्लीज इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट। देखो स्टडी द गिवन स्टेटमेंट में आपका पहला बोल रहा है कंपास इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन, ठीक है। कंपास जो है वो डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये तो एकदम सही आंसर है। उसके बाद बोल रहा है कि निडल ऑफ कंपास इज मैग्नेटिक, बिल्कुल निडल जो है वो मैग्नेटिक होगा, तभी तो आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। निडल ऑफ कंपास ऑलवेज इंडिकेट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ, बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑल द थ्री आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, राकेश हैज वन बार मैग्नेट। राकेश के पास क्या है, एक बार मैग्नेट है, ठीक है। चलो ठीक है, मान लिया। Two iron pieces and all of them are of same size and shape. Which of the following can use for identify them? Another magnet चाहिए उसको, कंपास चाहिए, या पीस ऑफ थ्रेड चाहिए, क्या चाहिए उसको। अगर आप उनको दिखाना है कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेम साइज आपका बोल रहा है, आयरन फिलिंग जो होगा वो सेम साइज और शेप का है, तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा कि उसको जो है एक अनदर मैग्नेट की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको क्या बोला कि सेम साइज और शेप का उसके पास क्या है, आयरन का पीस है, बहुत सारे दो दो है यहाँ पे, और दोनों ही सेम साइज वगैरह के हैं, तो मतलब उसको एक आयरन की जरूरत, एक मैग्नेट की जरूरत पड़ सकती है, या एक कंपास की भी जरूरत पड़ सकती है, या फिर पीस ऑफ थ्रेड की उसको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। या तो वो लटका दे मैग्नेट को, ठीक है, या फिर दूसरे मैग्नेट के थ्रू वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, या फिर कंपास जो है वो आपको दिखाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑल द थ्री। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा अट्रैक्ट नहीं होगा मैग्नेट से। तो सबको पता है कि गोल्ड के सामने अगर आप मैग्नेट को ले जाओ, तो क्या कभी आपने देखा है कि गोल्ड जो है वो मैग्नेट के साथ चिपक जाता है, नहीं। नेक्स्ट देखो, अब सॉरी, हाउ इज अ कंपास यूजफुल टू अस। तो कोई भी कंपास जो है हमारे लिए यूजफुल क्यों होता है, ओके। तो आंसर কি হয়ে যাবে, কেন कंपास আমাদের জন্য ইউজফুল। তো মনে রাখবে যে कंपास কি করে, আমাদের ডাইরেকশনের জন্য আমরা कंपास ইউজ করছি, রাইট। তো ইন ফাইন্ডিং অল দ্য ডাইরেকশন অফ আ প্লেস, ওকে। নেক্সট, soft iron pieces are placed across the end of bar magnet when stored. What are such pieces called। तो आपको बताना है कि सॉफ्ट पीसेस हम लोगों ने लिए, ठीक है, और उसको बार मैग्नेट के तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो जब हम लोग स्टोर कर रहे हैं तो बार मैग्नेट के एंड की तरफ वो जा रहे हैं, तो उस पीसेस को हम लोग क्या बोलेंगे।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? तो एकदम याद रखना है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, उसको कीपर्स बोलेंगे, ठीक है, कीपर्स बोलेंगे। ओके गाइस, सॉफ्ट आयरन पीसेस आर प्लेस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ बार मैग्नेट्स व्हेन स्टोर्ड। ओके, तो उसको हम उन सच पीसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कीपर्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा है आपको, निखिलेश हैज अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल एंड अ थ्रेड, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ मेटल एंड अ थ्रेड, वी वांट टू फाइंड वेदर द मेटल इज अ मैग्नेट और नॉट, ठीक है। तो आपको देखिए, एक निखिलेश है जिसके पास क्या है, मेटल का पीस है और थ्रेड है, ठीक है, और उसको पता लगाना है कि वो मैग्नेटिक है या नहीं है। तो उसको क्या करना होगा? तो बिल्कुल वही बात है, पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस उसको लेना होगा। नहीं भैया, पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो लेकर क्या करेगा? उसके पास देखो एक बोला पीस ऑफ मेटल ऑलरेडी है, थ्रेड है, और उसको पता लगाना है कि मैग्नेट जो है वो आपका, मेटल जो है वो मैग्नेट है या नहीं। तो मतलब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात कर रहा है, नहीं उसकी भी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। और एक बोल रहा है मैग्नेट ऑफ अ मैग्नेट और अ कंपास, ठीक है। तो उसको सिर्फ एक मैग्नेट और कंपास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग मोर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेटल को क्या करना है, उसको थ्रेड से, थ्रेड है उसके पास, मेटल है, तो एक मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा उसको कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, हरीश वॉज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन पुट इन अ बास्केट ऑफ 10 मैग्नेट्स, ठीक है। तो हरीश जो है एक सॉफ्ट आयरन को कहाँ पुट कर रहा है? एक बास्केट में जिसमें 10 मैग्नेट्स रखे हुए हैं ऑलरेडी, of the same shape and size, which is the easiest way to identify the iron piece at the earliest। तो आपको बोल रहा है कि कौन सा easiest way होगा उस आयरन पीस को इजिएस्ट वे से आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोल रहा है। सस्पेंडिंग द मैग्नेट ऑन एट अ टाइम, बाय कंडक्टिंग रिपल्सन टेस्ट यूजिंग एनी टू मैग्नेट्स एट द टाइम, by bringing another strong magnet near the basket, or by dropping all magnets into the water। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, रिपल्सन टेस्ट को कंसिडर करना है, ठीक है। यहाँ पर जब आपको 10 मैग्नेट दिया हुआ है, मतलब आप रिपल्सन से उसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज विल नॉट कॉज अ मैग्नेट टू लॉस इट्स मैग्नेटिज्म। नॉट बोला है यहाँ पे, नॉट पूछा है यहाँ पे, तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोटिंग विद अ लेयर ऑफ ऑयल, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म लूज नहीं होगा। हीट करेंगे तो अभी मैंने बताया था, हीट करने से लूज होता ही है। ड्रॉपिंग ऑन अ फ्लोर रिपीटेडली, तो अगर हम बार बार जमीन पे उसको फेंक रहे हैं तब भी ऐसा होगा। अगर हम हैमर से मारे तो वो क्या होगा, वो टूट जाएगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जा रहा है। तो मैग्नेटिज्म तो वहां लॉस हो ही रहा है। चलो नेक्स्ट देख लो क्या बोल रहा है, भाव्य प्लेस अ मैग्नेट नियर अ मेटल बॉल एंड ऑब्जर्व दैट द बॉल मूव्ड अवे, ठीक है। मैग्नेट को क्या किया, मेटल बॉल के सामने रख दिया। अब देख रही है वो कि बॉल, मेटल बॉल जो है वो भाग रहा है, उस मैग्नेट से भाग रहा है, ठीक है। What does she conclude about the metal ball? तो वो मेटल बॉल के लिए क्या कंक्लूड करेगी कि इट इज अ मैग्नेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिपल्शन कहाँ होता है, मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में ही तो रिपल्शन होता है, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेट। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, वेट, चलो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे हम लोग। पहले क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड, ओके, टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड, राइट, टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। दो मैग्नेट है जिसको हम प्लेस कर रहे हैं और वो क्लोज टू ईच अदर है, शोन बिलो। तो आपको बताना है विच सेट विल अट्रैक्ट ईच अदर, कौन सा सेट होगा जो अट्रैक्ट करेगा। तो देखो जहां पर नॉर्थ नॉर्थ ये नहीं होगा, हाँ ये वाला डी नंबर जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो नॉर्थ साउथ एंड साउथ नॉर्थ दिया हुआ है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है,
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज अ कंपास यूज, तो आपको बताना है कंपास को हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए इसको यूज कर रहे हैं, समुद्र में आपका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए और मैग्नेटिक मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब सारे काम के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वाई शुड वी पाइवोट द कंपास निडल ऑन अ शार्प पिन, तो आपको बताना है कि क्यों ऐसा होगा। पाइवोट सॉरी व्हाई शुड वी पाइवोट द कंपास निडल ऑन अ शार्प पिन, तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना है कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। तो बिल्कुल मिनिमाइज द फ्रिक्शन बिटवीन द पिन एंड द कंपास निडल, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है, पिन के साथ कंपास निडल के फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग पाइवोट को यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, व्हाई डज अ कंपास ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ डायरेक्शन, क्यों हमेशा कंपास जो है वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको हमेशा पॉइंट करता है। तो एकदम याद रखना है कि कंपास जो है इज अ मैग्नेट विथ द पॉइंटर स्टिकिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो कंपास जो है वो आपका मैग्नेट है जिसको नॉर्थ पोल, अर्थ के नॉर्थ पोल के तरफ हमेशा पॉइंट करने के लिए दिखाया गया है, ठीक है, बनाया गया है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज मैग्नेटिक रिपल्सन, वापस से आपको यही पूछा है कि मैग्नेटिक रिपल्सन आपका कौन सा डायग्राम दिखा रहा है। ओके, मैग्नेटिक रिपल्सन पूछा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज मैग्नेटिक रिपल्शन। ओके, तो मैग्नेटिक रिपल्सन कौन दिखाएगा, देख लो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों को पिक्चर मेरे ख्याल से तो नजर आ ही रहा होगा, है ना। तो बिल्कुल ये जो आपको दिख रहा है ना बी नंबर, यहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपका क्या है, देखो दोनों ही आपका मैग्नेट है और दोनों का सेम पोल यहाँ पे दिख रहा है। तो इसीलिए क्या हो गया, यहाँ मैग्नेट और स्टोन है, ठीक है, यहाँ यू शेपेड मैग्नेट है, यहाँ मैग्नेट और स्टोन दिखा रहा है आपको। और यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का सरफेस दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब आपका मैग्नेट मैग्नेट जहाँ पे दिखा रहा है ना वहां पर आपका रिपल्शन हो सकता है अगर सेम पोल्स है। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेट यूज, तो हम लोग किसमें एक मैग्नेट को यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल पिन होल्डर के लिए हम लोग एक वहां पर एक मैग्नेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अ मैग्नेट इन इट, तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा अपने अंदर मैग्नेट नहीं रखता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्च, ठीक है। टॉर्च में आपने कभी कोई मैग्नेट देखा नहीं है, फैन में जरूर होता है, रेडियो में भी होता है, बट टॉर्च में कभी भी कोई मैग्नेट हम लोगों ने नहीं देखा। नेक्स्ट देखो, इन मेनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स मैग्नेट्स इन द लीड्स और कवर्स आर प्रेजेंट, व्हाई आर मैग्नेट्स यूज्ड इन सच इंस्टेंस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो होते हैं, सामान जो होते हैं, उसमें हम लोग लीड को मैग्नेट से कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब लीड्स में मैग्नेट कवर में मैग्नेट्स होता है, प्रेजेंट होता है, तो ऐसा क्यों है। चलो देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। तो क्योंकि टू फैसिलिटेट देयर फ्रीक्वेंट यूज, ठीक है, उसके फ्रीक्वेंट यूज के लिए हम लोग वहां पर मैग्नेट को प्लेस करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज और आर मैग्नेटिक, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका मैग्नेटिक हो जाएगा सब्सटेंसेस। तो एकदम यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये ब्रास भी आपका, पीतल भी और खासकर निकल का कॉइन जो है ये भी आपका हो जाएगा क्या, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में चलाएगा, ठीक है। आयरन का जो नेल है, अच्छा सॉरी ब्रास लिखा है ना, पीतल नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, पीतल नहीं होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आयरन नेल है और आपका निकल कॉइन है, ठीक है। निकेल आयरन कोबाल्ट तो पढ़ा था, यहाँ ब्रास लिखा हुआ है, तो ब्रास मतलब आपका पीतल हो गया, ठीक है। तो ये आपका एलॉय है, यहाँ इसमें अट्रैक्शन पावर ज्यादा नहीं होता। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डू नॉट मेक यूज ऑफ मैग्नेट, ठीक है। कौन सा यहाँ पे आपको पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डू नॉट मेक यूज ऑफ मैग्नेट, तो यहाँ पर आपको जो पिक्चर्स नजर आ रहे हैं ना उसमें आपको इतना बता देना है कि इसमें से कौन सा, किसमें हम लोग मैग्नेट को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नेट को यूज नहीं कर रहे हैं। चलो, तो रेफ्रिजरेटर के डोर को बंद करोगे खोलोगे वहां मैग्नेट यूज होता ही है, जाहिर सा बात है, बट यहाँ पे मेरे को नहीं पूछा है। तो ड्राई सेल जो है उसमें हम कोई मैग्नेट यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ड्राई सेल में कभी देखा कोई मैग्नेट यूज होते हुए, नहीं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है,
वापस से आपको क्या दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, एक मैग्नेट है जो क्यूब के फॉर्म में है, ठीक है, एंड इज प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ कॉर्क दैट इज फ्लोट ऑन वाटर। तो ये कॉर्क है जो वाटर के ऊपर आपका फ्लोट कर रहा है। द क्यूब इज मार्क्ड विथ 4 डायरेक्शन, क्यूब को जो है 4 डायरेक्शन में मार्क किया हुआ है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ, डब्ल्यू एक्स वाई जेड में इसको मार्क किया हुआ है। कंपास निडल विच पॉइंट इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। तो कंपास निडल जो है वो आपका दिखा रहा है किस तरफ, नॉर्थ पोल ही दिखाएगा, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका नॉर्थ पोल हुआ एंड कौन सा आपका साउथ पोल हुआ, बस इतना आप लोगों को बता देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बिल्कुल याद रखना, आपका नॉर्थ पोल जो है वो आपका वाई को दिखा रहा है, ठीक है, एंड आपका साउथ पोल जो है वो आपका जेड को दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल आपका हो जाएगा कहाँ पे, वाई को, एंड साउथ पोल जो है जेड को। नेक्स्ट देखो, वापस से आपको 2 मैग्नेट फिर से दिए हुए हैं एक्स और वाई करके। वीक मैग्नेट वाई इज प्लेस्ड नियर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एक्स शोन इन द फिगर, हाउ विल द मैग्नेट मूव। किस तरीके से मैग्नेट मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पूछ बोला है एक्स जो है वो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एंड वाई जो है वो आपका वीक है। तो मैग्नेट किस तरीके से मूव करेगा, तो बिल्कुल वाई टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। वाई जो है ये आपका एक्स की तरफ मूव करेगा, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट शो इन द पोल करेक्टली, डज नॉट शो द पोल्स करेक्टली। तो आपको यहाँ पर देखो बताना है कि कौन सा जो है पोल सही से नहीं दिखा रहा है, कौन से फिगर में पोल सही से आपको नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल जो इस तरीके से आपको चुंबक दिख रहा है, मतलब जो सर्कुलर चुंबक है, उसमें आपको पोल क्या कभी सही से नजर आएगा, नहीं, पोल वहां पे हम लोग सही से नहीं बता सकते। नेक्स्ट देखो, सतीश जो है वो मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ आयरन मार्क्ड डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो 4 जो है मार्क किया हुआ है यहाँ पे, देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, using a stroking method shown in the figure, which of this part of the iron piece will become the north seeking pole। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे नॉर्थ पोल को रखेगा, कौन सा पार्ट होगा एक्स वाई जेड में से, डब्ल्यू एक्स वाई जेड में से। तो बिल्कुल यहाँ पे मेरे को आंसर क्या दिख रहा है, तो डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू जो है वो आपका किधर पड़ रहा है, पोल की तरफ पड़ रहा है ना, मतलब आपका छोर एक एंड की तरफ पड़ रहा है। तो ये और साउथ तो आपको, इस चुंबक का साउथ आपको लास्ट की तरफ दिख रहा है, नॉर्थ की तरफ कौन सा है, डब्ल्यू ही दिख रहा है ना। तो यहाँ पे डब्ल्यू जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्या है, Ganeshan set up an experiment using 2 bar magnets, one of which is marked in North Pole and one South Pole, ठीक है, shown in the figure। फिगर में जैसा आपको दिख रहा है, एक आपका नॉर्थ पोल एंड एक आपका साउथ पोल दिख रहा है, ठीक है। He noticed that the upper magnet is suspended in air, identify XY pole of the upper magnet। तो क्या हो रहा है, ये रिपल कर रहा है ना, रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे। तो जब भी आप लोगों को रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स जो है वो आपका नॉर्थ पोल हो गया एंड वाई जो है वो साउथ पोल हो गया। तो अगर मान लो कि हम साउथ के साथ साउथ को रख रहे हैं तो रिपल्शन ही तो होगा, नॉर्थ के साथ नॉर्थ को रखेंगे तो रिपल्शन होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि हवा में वो दिख रहा है थोड़ा सा, इसका मतलब क्या है, वहां पे रिपल्शन हो रहा है। नेक्स्ट देखो वापस से क्या पूछा है, वापस से आपको सेम आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है, विष्णु ब्रिंग अ मैग्नेट नियर 3 पिन्स। 3 पिन के सामने विष्णु ने क्या किया, मैग्नेट को रखा, ठीक है, मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। पिन वाई एंड जेड आर गेट अट्रैक्टेड वेयर पिन एक्स रिमेन्स इन द प्लेसेस एज शोन बिलो। तो मटेरियल आपको बताना है एक्स वाई एंड टी मेड अप ऑफ, टी नहीं होगा यहाँ, जेड होगा, एक्स वाई और जेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाई और जेड तो क्या बोल रहा है, अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, एक्स अट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो एक्स क्या हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा, जाहिर सा बात है, तभी तो अट्रैक्ट नहीं हुआ। तो एकदम कॉपर जो है वो आपका अट्रैक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है, आयरन और स्टील तो बिल्कुल अट्रैक्ट हो जा रहा है ना, तो मतलब ए आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। स्टील अभी पढ़ा था, एल्युमिनियम, जेड जो है वो ऑलरेडी अट्रैक्ट हो चुका है, मतलब मेरे को सिर्फ एक्स वाला ढूंढना है। यहाँ ब्रास और कोबाल्ट लिख दिया है, नहीं होगा, ब्रास जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है।
तो मतलब ए आंसर ही मेरे को सही दिख रहा है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेथड टू प्रिवेंट मैग्नेट फ्रॉम लूजिंग देयर मैग्नेटिज्म। तो आपको बताना है करेक्ट मेथड टू प्रिवेंट, मतलब मैग्नेट से मैग्नेटिज्म लॉस ना हो, इसके लिए आपको मेथड बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे मेथड क्या होगा, पहले वाले देखो हीट किया जा रहा है, पहले वाले को, दूसरे वाले को एक जगह पर रख दिया हुआ है, ठीक है, तीसरे वाले को हथौड़ा मार रहे हैं एंड चौथे वाले को बहुत सारे मैग्नेट के साथ रख दे रहे हैं। तो किससे हम लोग मैग्नेटिज्म को बचा सकते हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से जब हम एक मैग्नेट को रख दे रहे हैं किसी एक जगह पर, तो वहां पर मैग्नेटिज्म उसका लूज नहीं हो रहा है। अब आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ मैग्नेट आर पॉसिबल, कौन सा शेप मैग्नेट का यहाँ पे पॉसिबल है, PQRS में, PQR में। तो यहाँ पर आपका तीनों ही शेप बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। यू शेप का हम लोग देखते ही हैं, बार शेप का होता ही है, और यहाँ सर्कुलर शेप का भी बताया हुआ है, तो तीनों ही पॉसिबल है, ठीक है। तो बिल्कुल इस चैप्टर में आपका इतना ही। ओके, तो अब हम लोग कब मिलेंगे, तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अनअकैडमी ऐप पे आप हम लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं। कैसे फॉलो करेंगे, तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो, ठीक है, गोल सेट कर लो, WBPSC फ्री क्लासेस में चले जाओ, फ्री क्लासेस में जाने के बाद प्रीति कुमारी पर सर्च कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ये फीस स्ट्रक्चर मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तो आप जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप 1, 3, 6, 12 और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन बिल्कुल आप ले सकते हो, ओके। एंड जब भी कोई सब्सक्रिप्शन लोगे तो कोड यहाँ पर यूज करना है ताकि आप लोग को 10% की डिस्काउंट मिले। तो बिल्कुल यहाँ पे आप प्रीति कोड को यूज करके 10% की डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, 10% डिस्काउंट তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, ছাড় পাচ্ছ যদি তোমরা এই কোডটা ব্যবহার করে নাও, ওকে। শুধু WBPSC এর জন্য নয়, যে কোনো কোর্সের জন্য এই কোডটা তোমরা ইউজ করতে পারো, ओके गाइस। साथ ही साथ क्या है, नो कॉस्ट EMI की फैसिलिटी भी यहाँ आपको मिल रही है। कैसे करके आपको यूज ATM और डेबिट कार्ड भी आप यहाँ पे यूज कर पा रहे हो, ठीक है, और नो कॉस्ट EMI भी आपको मिल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इन सारी चीजों को आप, इन सारे सुविधाओं को आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो फिर इतना ही, ओके। तो सारे एग्जाम्स को क्या करना है, लेट्स क्रैक इट, राइट। तो सारे एग्जाम्स को क्रैक करना है ना। तो बिल्कुल अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। तो बिल्कुल आप लोगों का जो है क्लास 6 का चैप्टर एकदम खत्म होने को ही आ चुका है, और अब हम लोग क्लास 7 को भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्लास 7 NCERT को स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहां और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। 6 में तो आप लोगों को बस बेसिक चीजें ही आप लोगों को बताई गई, तो इन बेसिक चीजों के अलावे 6 में जो है आप लोगों को बेसिक चीजें बताई गई, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। एंड अब हम लोग जो है 7 में थोड़ा सा और एडवांस चीजों को पढ़ेंगे, फिर जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे और सारे इन्फॉर्मेशन ऐड होते जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल अच्छे से अपनी क्या अच्छे से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एक मेरे को यहाँ पर टैग लगा देना चाहिए था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, अच्छे से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिए और साथ ही साथ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आप लोग के सामने है ना। तो बिल्कुल NTPC का एग्जाम चल ही रहा है, बैंक एग्जाम्स भी होने ही है, ओके। तो CHSL जो है उसका फॉर्म फिलअप हो ही चुका है, WBCS की फॉर्म फिलअप जो है वो आप लोग की हो ही रही है। तो बहुत सारे एग्जाम है सामने, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में एंजॉयमेंट को भूल जाए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एंजॉय भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।